Good morning, student of class 10th. Today we begin our new unit, that is unit number 7, database development basic. So in this unit we are going to cover the introduction of database management system, what are the advantages of database management system, component of database management system, and many more things. So let's start with the session number 1. So session number 1 is about database concepts. So database concepts में क्या आता है? Storing data and retrieving information has been a necessity of all businesses. Data can be anything such as a name of a person, a number, image, sound, audio clip, or anything. So, everywhere in a business or in a small organization or being a single human, also, you need to store some data. You are having your own database, whether it's a small phone book, diary. So, let's have a look. A database is a collection of related data from which user can efficiently retrieve the desired information. So what is retrieving? Retrieving means is to getting back the information. जो information आपने store कर दिया उसे वापस से लेना is retrieving. A database can be simple collection of text data in a simple tabular form. Now the next word is tabular. What is tabular? When we are storing any data in a form of rows in the column, then it is known as tabular form. To a complex collection of images, audio और video. So database क्या है? Database क्या है? Data का collection. And this data can be images, numbers, some characters or anything, and in a form of tabular manner. Next we are having what is database management system. So पहले क्या होता था, जब हमें ये पता चलता था that we have to store our data, हम अपने डाटा किस में स्टोर करते थे? We store our data in files. बट क्या फाइल्स में डाटा को सेव करना हमेशा सेव होता है? नो. क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि आप जब भी अपना डाटा फाइल्स में सेव करते हैं, मे बी और एक्सीडेंटली फाइल डैमेज हो सकती है, चोरी हो सकती हैं, या फिर ऐसा होता है आफ्टर सम टाइम फाइल्स के पेपर जो होते हैं दे स्टार्ट चेंजिंग देयर कलर. ओके, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं. मीन्स अगर कोई अभी कहे कि 100-200 साल पुराना कुछ लिखा हुआ चाहिए, इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट कि कोई भी चीज़ इतनी पुरानी लिखी हुई आपके पास हो. सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं? वी यूज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो व्हाट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इन दिस सिस्टम वी स्टोर द डाटा नॉट इन फाइल बट इन कंप्यूटर. जब हम कंप्यूटर्स में अपने डाटा को स्टोर करते हैं, और जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या होता है? द अदर सेट ऑफ सम programs that help the user to create, to retrieve, to manipulate the data that is filled in the database. ओके, सिंपली आप क्या कर सकते हैं? डाटाबेस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. लाइक आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है बहुत मोटा सा, और एक तरफ आपके पास आपका कंप्यूटर है. मैं आपको कहती हूँ दैट यू हैव टू सर्च ऑल द नेम्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए. तो वो जब रजिस्टर में आप वो काम करोगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग database management system, that is DBMS. So what is DBMS? DBMS is a collection of program जो यूज़र को हेल्प करता है डाटाबेस में कुछ भी स्टोर करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए. सो व्हाट इज़ द मेन एम फॉर DBMS? उसका मेन एम यही है दैट इट स्टोर्स द डाटा इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर. Next we are having the basic concepts behind the DBMS. So what are the basic concepts? First one is specification of the data type, structures and constraint to be considered. So here we are having two new terms, that is data type and the constraint. So what are the data types? डाटा टाइप होता है कि आप अपने डाटाबेस में किस टाइप का डाटा यूज़ कर रहे हैं, लाइक वेदर यू आर यूजिंग इंटीजर नंबर्स. ओके, सेकेंड
like whether you are using the characters, words, and where you are using both numbers and the characters. like अगर हम मोबाइल नंबर लेते हैं तो उसमें सिर्फ नंबर्स आते हैं, वहीं पे हम अगर किसी का नाम लेते हैं तो वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में लिखा होता है, बट अगर हम किसी का एड्रेस लेते हैं तो उसमें नाम और अल्फ़ाबेट्स दोनों ही आते हैं. सो वी हैव टू मेंशन द टाइप ऑफ द डाटा दैट वी आर स्टोरिंग इन द database. Next we are having the constraint. Constraint are the conditions that we applied on particular column. किसी भी कॉलम पे जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाती हैं? कंस्ट्रेंट. बहुत बार आप किसी साइट पे अपनी डाटा एंट्री कर रहे होते, कुछ भी एंटर कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम अगर आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं जो 9 डिजिट्स का होता है तो वो लिख के आ जाता है दैट इट इज़ अ रॉन्ग मोबाइल नंबर. तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसमें कंडीशन लगी होती है दैट कि उसमें आप 10 नंबर ही इनपुट करेंगे. सिमिलरली आप लोग फीडबैक फॉर्म भी भरते हैं स्कूल का, उसमें बहुत से फॉर्म्स में क्वेश्चन होते हैं जिस पे रेड कलर का स्टार बन के आता है. दैट मीन्स दे आर द कंपल्सरी क्वेश्चन, उन्हें आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. सो इट मीन्स वी आर पुटिंग सम कंडीशन ओवर दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज स्टोरिंग द डाटा एंड मैनिपुलेट इट एज रिक्वायर्ड. वी कैन स्टोर द डाटा एंड मैनिपुलेट इट. आपने एक बार डाटा को लिया, उसको स्टोर कर दिया. मैनिपुलेट मतलब किसी बच्चे का अगर फ़ोन नंबर चेंज होता है, आप उसमें अपडेट्स करते हैं, उसको चेंज करते हैं, दैट इज़ नोन एज मैनिपुलेटिंग. नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट इज क्वायरिंग द डाटाबेस टू रिट्रीव द डिज़ायर्ड डाटा. नाउ द टर्म इज क्वायरिंग. क्वायरिंग मतलब द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, जो आपकी दिक्कत है, जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज़ नोन एज क्वायरी. एंड द लास्ट वन, अपडेट द कंटेंट ऑफ द डाटा. आप चाहे जितनी मर्जी टाइम उसे मैनिपुलेट करें और चाहे जितनी मर्जी टाइम उसे सेव करके अपडेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग नीड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब आया कि नीड क्यों पड़ी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू. Database approach come into the existence due to the drawback and the limitation of file processing system. Drawbacks and limitation of file processing system. So in file processing system, updating, deleting and maintaining the data is difficult. A number of application programs are written by the programmer to maintain the data. In the database approach, the data is stored at central location and is shared among multiple users. Thus, the main advantage of DBMS is centralization of the data. So I'm going to explain you this, why there is a need of database management system. The main need of database management system is because of the limitation and the drawbacks of the file processing system. File processing system means when you are storing all of your data in registers and different files. Okay. सो उसका ड्रॉबैक क्या होता है? इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग और अपडेट समथिंग तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, चलिए डिलीट करने के लिए तो आपने एक लिया, कट लगा दिया. अगर अपडेट करना है, आज से कोई बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, 10 साल पहले से उसका फ़ोन नंबर चेंज हुआ है, ठीक है, तो आपको फिर वहीं से रजिस्टर ओपन करना होगा, उसमें कटिंग करनी होगी, उसमें अपडेट करना होगा एंड दैट बिकेम क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो हम क्या करते हैं, जब हम अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं. सो व्हेन वी आर स्टोरिंग डाटा इन ऑन कंप्यूटर, तो हम फिर क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, सिंपली आपने अपना डाटाबेस खोला, उसमें चेंज किया और वो जो चेंज है वो सब जगह रिफ्लेक्ट होगा. नाउ हियर कम्स आवर वर्ड सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो आपका डाटाबेस है दैट इज़ अवेलेबल टू द डिफरेंट यूज़र्स. कई सारे यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो जब कई सारे यूज़र्स उसे एक्सेस करेंगे, इट मीन्स योर DBM जो डाटाबेस है वो क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड कराएगा. किस चीज़ की? डाटा की. Next, we are having advantages of database management system. This topic we are going to cover tomorrow. Thank you, students.